Hello student, I am Varun Nishad from LPM Public School. In this video, we will discuss about the three law of Mendel that is given by doing their experiments and which are based on their monohybrid and dihybrid cross. So one of the most important law that is universally accepted, the law of independent assortment. The law of independent assortment. The rest of the two law, that is law of dominance and law of segregation, we will discuss in the after their discussion. So law of independent assortment means that there is a cross with two pure gamete, that is pure tall and pure short. We found in F1 generation the hybrid tall, that is it is represent the law of dominance. On selfie in the second generation, the product of F1 generation get again self-cross between them. We have like male and female gametes, and we found the another pure form that is taken in F1 generation as a gamete gets segregated, and we are discussed in previous video already. But also today we will discuss again. But before that, we will discuss the law of independent assortment. So law of independent assortment, that means it is indicate that the dominancy or dominant gene did not suppress the all activity of recessive gene, through which we discussed about the suppose in F1 generation, and this is the product of F2 generation. So if we take the two contrasting character, that is a dihybrid cross. So dihybrid cross, that is take the two characters. The two characters are the round shaped yellow colored seed, that is capital R, capital R, capital Y, capital Y, and wrinkled and green color. तो इसका गैमेट क्या हुआ? स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल. And so their chromosome we have like that, like so it is a R, it is a R, it is a Y, it is a Y, and it is a bilobed chromosome. It is a small r, it is a small r, it is a small y, it is a small chromosome. After separation, the chromosome lobe gets separated, and they are found that and they are also separated that so it is a small r, small y, capital R, small y, sorry, capital Y, capital. इन सब में से एक गैमेट ले लेना है, because the gametes contain half number of chromosome, as we know that from our previous chapter, that is how to organism get reproduce. तो इसमें से एक ही क्रोमोसोम लेंगे, एक ही कैरेक्टर. तो एक ही कैरेक्टर कौन सा लेंगे? एक कैरेक्टर ये ले लेंगे और ये कैरेक्टर ये ले लेंगे. इसमें से एक कैरेक्टर ले लेंगे और इसमें से ये कैरेक्टर ले लेंगे. तो दोनों ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कैपिटल R, स्मॉल y,
स्मॉल आर स्मॉल, एंड दे फॉर्म कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो कैपिटल आर है, ये जो है राउंड जीन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो कैपिटल वाई है येलो जीन को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर को। तो जो सीड का शेप होगा वो राउंड होगा, और जो सीड का कलर होगा ये वो येलो होगा। बोथ कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट that are represented by capital letters, and the wrinkled green are the represented by small r, and green is represented by small y. That is, these are the recessive characters. Recessive characters. There is two characters, two pair. ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, टू पेयर हो गया, दो पेयर कैरेक्टर लिया जा रहा है इसमें, इसलिए बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मिल गया आपको डाई हाइब्रिड रेशियो। तो ये दोनों क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में मिल गए तो क्या बन जाएंगे, बिल्कुल ये इस तरह से एक वाला एक ये वाला एक, मतलब ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये इस तरह से, और ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल, इस तरह से बन जाएंगे। तो ये फिर से तैयार हो गए दो लोग, ये दो लोग तैयार हो गए। इसी तरह से F1 जनरेशन में क्या मिल गया, F1 जनरेशन में क्या मिला, इन F1 जनरेशन द राउंड एंड येलो color of seed are present, but they are not pure. This is a pure equal number of capital letters which represent the same or pure gene. But यहाँ पे pure gene नहीं है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। बट ओवरऑल क्या मिल रहा है, राउंड येलो, मतलब जो राउंड और येलो का कैरेक्टर है, जो जीन का कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है किस पे, रिंकल्ड और ग्रीन। तो F1 जनरेशन में क्या मिला, राउंड येलो। बट F2 जनरेशन में जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है इसी तरह के, आई थिंक ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से दो क्रोमोसोम तो एक ही होता है, एक ही क्रोमोसोम, एक ही अलग अलग क्रोमोसोम लिए गए हैं, और इसके जो जीन्स हैं इस तरह से जीन्स लिए गए हैं जो सेपरेट होगा, तो अलग अलग जीन सेपरेट होंगे, हाफ नंबर आप क्रोमोसोम हो जाएंगे, और हाफ नंबर आप क्रोमोसोम जब पूरे होंगे तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम, कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो मिला है हाइब्रिड कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये जो है राउंड येलो मिल F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में मिला, सेल्फी कराएंगे तो सेल्फी में ये पूरा निकलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक क्रोमोसोम पे आ जाएगा, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक क्रोमोसोम पे आ जाएगा। तो इसका माना मेल और इसको मान लिया फीमेल। अब ये अलग अलग क्रॉस होगा, अलग अलग गैमेट बनेगा। तो अलग अलग गैमेट कैसे बनेगा, ये पूरा कहां जाएगा, ये जाएगा, दो कैरेक्टर लेंगे तो दो कैरेक्टर क्या आएगा, तो दो कैरेक्टर देखिए ये आएगा कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये मेल में भी आएगा और ये फीमेल में भी आएगा। अब मेल में क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये फीमेल में आ गया। अब फीमेल में क्या आ रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, मेल में क्या आ रहा है, स्मॉल आर स्मॉल। सिर्फ उसको कम्युनिकेट करके, उसको ऐड करके लिख देना है, फिर बाद में ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर आएगा, कौन सा शेप बनेगा, कौन सा कलर। अब ये मेल और फीमेल क्रॉस हो रहा है, क्रॉस होगा तो कौन सा कैरेक्टर आएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, दोनों को यहाँ पे नोट कर देंगे, कैपिटल आर, सेम यहाँ से इसका क्रॉस होगा इससे, तो इसमें जो भी अमाउंट है यहाँ पे लिखते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई,
क्रॉस विथ स्मॉल r कैपिटल Y, दैट इज कैपिटल R कैपिटल Y क्रॉस विथ स्मॉल r स्मॉल y, दैट इज कैपिटल R स्मॉल y क्रॉस विथ कैपिटल R कैपिटल Y, ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल। यहां पर देखिए ये क्रॉस करेगा फिर इससे, तो कैपिटल R लेकिन स्मॉल y वेरिएशन से, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल। ये कंडीशन है। यहां में भी है स्मॉल r, ये इस कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल। ये पूरा कनेक्ट करके यहां लिखेंगे, इससे कनेक्ट करके यहां लिखेंगे, इससे क्रॉस करके यहां लिखेंगे, इससे क्रॉस करके यहां लिखेंगे, मिला सकते हैं, कोई वेरिएशन कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां देखेंगे लास्ट पर क्रॉस होगा इससे, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y। अगेन this cross from this one, this cross from this one, this cross from this one. Now how many progeny and how many characters they are contained? देखिए ध्यान से, उसके बाद यहां पे जो कैरेक्टर है यहां प्योर है, राउंड येलो प्योर, यहां पे हाइब्रिड है, यहां पे हाइब्रिड है, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, लेकिन ये राउंड ग्रीन है क्योंकि कैपिटल R तो राउंड ग्रीन है, लेकिन स्मॉल y ग्रीन के लिए मैंने ग्रीन लिखा है। यहां पे क्या है, यहां पे तो कैपिटल R स्मॉल y ये भी राउंड और ग्रीन, ये सॉरी राउंड हो गया, लेकिन यहाँ राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल y यहाँ पे कैपिटल R ये सॉरी ये राउंड और येलो है, ये भी राउंड येलो है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल r है, कैपिटल Y। तो यहाँ पे ये स्मॉल r किसका कैरेक्टर है, तो रिंकल्ड का है, तो रिंकल को मैंने W से प्रेजेंट किया। येलो तो येलो यहाँ क्योंकि कैपिटल Y स्मॉल r दैट इज रिंकल्ड, कैपिटल Y डोमिनेंट है स्मॉल y पे, तो येलो। राउंड येलो, राउंड ग्रीन क्योंकि स्मॉल y, रिंकल्ड y येलो है क्योंकि स्मॉल r यहाँ पे कैपिटल Y, तो कैपिटल Y येलो का जीन है और वो डोमिनेंट है ग्रीन। यहां बिल्कुल प्योर मिल गया, कैपिटल R स्मॉल y। अब कितने राउंड येलो मिले, कितने राउंड ग्रीन मिले, कितने रिंकल येलो मिले और कितने रिंकल ग्रीन मिले, देखते हैं। तो 9 जो है, 9 राउंड येलो, 3 जो है वो राउंड ग्रीन मिले, और 3 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन मिले, रिंकल्ड येलो मिले, और 1 जो है उसमें रिंकल्ड ग्रीन मिला, रिंकल्ड ग्रीन। पहले आप मोनो हाइब्रिड क्लास में आप